अगर 2025 में आपने प्री दिया Yes. तो कब से तैयारी कर रहे थे आप इस एग्जामिनेशन की? I'll be able to crack in the first attempt. But क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज के साथ भी करते हैं, कैसे बैलेंस करते थे आप? तो प्रीलिम्स को कैसे फोकस किया? सीसैट था, इतना कम टाइम था। I know how to crack prelims because मैं अगर AIR 1 से पूछूंगा तो उन्होंने भी वही सोर्सेज पढ़े हैं. इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे अप्लाई करते हो. हाउ हैव यू डन द PYQs? GS प्रीलिम्स निकालने का एक बहुत बड़ा फंडा ये है. व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर द आंसर राइटिंग? करंट अफेयर को कैसे आपने मैनेज किया कि आपके पिताजी ने इस एग्जाम को दिया, 6 बार ही दिया, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कि कुछ अपने पास एक पावर है, शक्ति है, See, पिताजी से मिली है? इट्स लाइक नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है. गिव वंस मोर, इम्प्रूव योर रैंक, गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टाइप्स. तो मैंने कहा अरे यार आप थोड़ा दिन तो चिल करने दो भाई. डू नॉट टेक CSAT फॉर लाइटली. आज की डेट में ये PYQs जो हैं वो लाइक स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. So hello and welcome to Margdarshan IS. Today we have got one of the most energetic, a young UPSC topper who has cracked UPSC in his very first attempt, Mr. Aditya Dhiman with AIR 753. आदित्य, मेरी तरफ से और जो ऑडियंस देख रही है उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सर. और एक कॉल पे मैंने रिक्वेस्ट की एंड यू स्ट्रेट अवे यू केम टू मीट मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड थैंक यू सो मच. दिल बहुत अच्छा है, बड़ा है आपका. थैंक यू सर. नाउ देयर आर मेनी थिंग्स टू आस्क. अपने आप में आदित्य फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे इस बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. वी आर सिटिंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर एंड एक एवरेज स्टूडेंट से यहाँ पूछेंगे तो लगभग या तो अटेम्प्ट दे चुका है, नहीं तो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन विशिंग यू congratulations and very well done. Extremely proud of you when I see these kinds of aspirants crack UPSC in the very first attempt. थैंक यू सर. अब इसको ब्रेक करते हैं. सबसे पहले आप ज़रा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं एंड देन एजुकेशन बैकग्राउंड. So my name is Aditya Dhiman. Right now I'm 23 years old. I've graduated in law from National Law Institute University भोपाल. Okay. उससे पहले मेरी 10th and 12th हुई है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, और ऑप्शनल मेरा लॉ था. और दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और आई डिड इट विद माय ग्रेजुएशन इटसेल्फ. Okay. Yeah. So when did you graduate? Okay. 2025? Yeah, I graduated in 2025. Yes. And उसी साल प्री भी था, Yes. Mains भी था. मेंस भी था, Yes. एंड देन इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर. Yeah, January. सो ये हाउ डिड यू डू दिस? मतलब अगर 2025 में आपने प्री दिया Yes. तो कब से तैयारी कर रहे थे आप इस एग्जामिनेशन की? Sir, I think UPSC का कीड़ा हमेशा से दिमाग में था, because as I said, my father is in the state civil services, so he always tried to convince me that civil services provides for a very effective way and a very good platform to serve the nation. And I've seen him in the authority and how he has made made a change in the lives of people. So that was something very inspiring for me. But whenever you think about this exam, तो पहला thought जब आता है तो you are very much overwhelmed and scared, because the vastness of it, everybody knows it is the toughest Exactly. exam. And the stages, there are 3 stages, there is so much of filtration. So many people are attempting, there are people who are older than you, who are from better institutions than you. So for the first time when you think about it, of course you feel scared. But I think it was in my 3rd year when I made up my mind, when everybody was deciding that what their career path must look like. So I was very convinced that so in our college, I am from National Law University Bhopal. So हमारे college में there's a lot of corporate culture. So my friends were like, they were trying to move towards that direction and doing internships and stuff. But I was like, yeah, even if I do that, eventually I'll have to figure out life again, because that is not something I really want to do. तो आई थॉट कि लेट्स गिव यूपीएससी अ ट्राई. नहीं होगा तो क्या, फिर अटेम्प्ट्स तो हैं ही, 2-3 अटेम्प्ट्स आराम से लेंगे. विल डू दैट. ऑफ कोर्स आई नेवर थॉट देन बैक देन कि आई विल बी एबल टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. बट हैविंग सेड दैट, नाउ आई फील दैट it's a big thing. Definitely, if you have that consistency, that discipline, the effort that you put in over the years, if it's very
consistent, then I think this exam can be cracked as well, and even in your first attempt. Because of course first attempt में जो सबसे बड़ी बात होती है वही होती है कि you have to check all the boxes to correct to be able to make through it. The cutthroat competition that this exam has of course needs you to put in that extra hard work, because you have to balance both your college studies as well as your UPSC I studies. saw a few of your videos on YouTube where you said that you started preparing from 10th 11th में भी थोड़ा सा करना शुरू किया था. So there was an idea basic. So when I was in 9th class, so my father, he brought me a book called General Studies it was by K. Mohan. अच्छा. तो I was not interested at all. He was like कि बस पढ़ लो, बीच बीच में पढ़ता रहता था, उनको दिखाने के लिए पढ़ता था basically कि हाँ देखो मैंने इतना कर लिया and stuff. But then when I got into 11th and 12th, then first of all I was from PCM, physics chemistry maths, so I had to do that. But at the same time I was also convinced that I don't want to be an engineer. Right. Yeah, so at that point of time my father told me then you can look for law, and I was like ठीक है law देखते हैं. Then I started studying for CLAT. Now CLAT has a component of GK, right? General studies in it. Not as much as UPSC has, but definitely it has some of it. तो मेरा जो पहला exposure था to general studies properly was in 11th and 12th. And back then my foundation for some certain things of GS also started building up. But yeah, the preparation that you need for UPSC CSC is something which needs to be very focused and a long-term plan, which I made in my third year. And consistently I put in 5, 6, 7 hours every day classes के बाहर, so that I can make up for so there are people who are preparing पूरे साल, right? So I was competing with those people. I always used to think कि जब मैं थोड़ा chill करूँगा तो they are studying, they are my competition. In fact, you were also competing with those people who were already selected. Yeah, Exactly. Who were already given mains interview. Yeah, those who are selected officers. Yeah, definitely. That is the case every year. So yeah, you need to have that mindset कि never give up attitude is something you really need in UPSC CSC, because if you look at the things which are attached to it, so there's a lot many subjects. Your optional, my optional is law, so law in itself is very vast, and optional. So that way I think that was my idea. The base started in 9th 10th, the first exposure, and eventually proper full-fledged preparation I started when I was almost ending my third year, which was in my 6th semester. And then I had 2 more years to prepare. ये बैलेंस कैसे करते थे आप आदित्य? जैसे आप यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर ले आना, क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन साइमल्टेनियसली नाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मेरे को यूपीएससी भी देना है. सो हाउ डिड यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज के साथ भी करते हैं, सो कैसे बैलेंस करते थे आप? Sir, I think my college, of course, the academics are very rigorous in law school, but I think, sir, इंटेंट की बात है, बिकॉज लोग कहते हैं कि नहीं हो पाता, बट एक्चुअली दे डोंट ट्राई. इफ़ यू रियली ट्राई यू विल फाइंड आउट कि कॉलेज में यू हैव सम टाइम विद यू. पीपल ट्राई टू जस्ट जस्टिफाई कि नहीं कॉलेज के साथ नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि तुम्हें वो भी करना है, सब करना है. बट आई थिंक आई हैड अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्लान. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि क्लासेस हमारी 9 से 1 तक होती थी, एंड देन आई यूज्ड टू हैव सम रेस्ट, एंड देन फिर पूरा शाम पूरा से रात तक आई यूज्ड टू बी इन द लाइब्रेरी. बट इवन व्हेन आई वाज इन द क्लासेस, तो एवरीबडी नोज कि कॉलेज के एग्जाम्स के लिए सब 1 दिन पहले पढ़ते हैं या 2 दिन पहले पढ़ते हैं, उससे पहले कोई नहीं पढ़ता. जनरली ओवर द सेमेस्टर you needn't study honestly. Understood, right. Yeah, so I used to utilize that time, because when my teachers used to teach me, for example, if they are teaching constitutional law, so that aligns with my law optional, because constitutional law is a part of it, so I used to study अच्छे से. But समझ लो कोई IPR है, intellectual property rights पढ़ा रहे हैं, and that is not aligned with my UPSC, तो I used to study my own. अपना सब्जेक्ट पीछे बैठ जाता था, वहाँ पे पढ़ता रहता था. So teachers were annoyed, of course, कि उनका सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ रहा, but I think you have to make some sacrifices. And Yeah, it does, but there is a difference. Like back camera, we were talking about कि UPSC का objective दूसरा है. UPSC personally asks you about your maybe opinion, what maybe your dimension of thinking this. So आप तो law के लिए prepare कर रहे थे. That is completely a different domain and zone from CSC. It's like how were you preparing? Because CSC के optional में जो law है, उसमें वो questions जो पूछ रहे हैं, it's going to be very different from the जो आपके law में questions आ रहे हैं. that's true. तो वो क्या अलग नोट्स बनाते थे, कैसे करते थे उसको? See, I'll be very honest. कॉलेज के जो क्लासेस के नोट्स हैं, they were not relevant for me in optional law, because optional बिल्कुल अलग है, right? Right. But sir, it's also about that when you study a particular thing from a professor who is very educated in that, who has that degree in that,
तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ गेट्स बेटर. ऑफ कोर्स आई डिडंट रिलाई ऑन द क्लास नोट्स फॉर माय यूपीएससी लॉ, ठीक है. बट आई हैड दैट कोर अंडरस्टैंडिंग इन मी. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ नुआंस्ड एरियाज और नुआंस्ड वे ऑफ थिंकिंग जो है वो मैंने क्लासेस में उसको समझा है, ठीक है. राइट. ओनली देन आई कुड अप्लाई इट इन माई लॉ ऑप्शनल के एक्चुअल आंसर्स. Right. एक्चुअली जो मैंने नोट्स बनाए थे दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट, दे वर PYQ बेस्ड Based नोट्स course, right. कम्प्लीटली. उसके मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन what I'm trying to say is कि जो क्लास में तुम पढ़ते हो ना, it remains in your subconscious, and then your way of arguing things get better Right. compared to जब तुम बहुत shallow level पे पढ़ते हो, because law optional इतना बड़ा है कि उसको तुम सारी चीज़ों को वो कवर करने की 100%. कोशिश करते हैं and तुम ऊपर ऊपर से shallow way में पढ़ते हो. But if you have some depth of certain subjects जो तुमने classes में पढ़े, जैसे I had in paper 1 I got 128 which is a good score this time law में. That has constitutional law, administrative law and international law. So international law was something I really liked हमेशा से. ठीक है. Even in classes PIL, IHL, I used to really love ठीक है. love reading them. तो that way I think of course directly काम नहीं आते हैं, but you have that thinking and तुम्हारा सोचने का तरीका उस तरह से हो जाता है. So when the actual exam comes, you give those critical or those different nuanced arguments which Right. can give you 1 or 2 marks extra. मेंस में तो बहुत राइट. Yeah. साइमल्टेनियसली ये बताया था आपको किसी ने, खुद से किया कि मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो शैल आई टेक लॉ ऑप्शनल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे स्विच टू छोटा ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी वगैरह हो गया एंड ऑल, तो ये कैसे हुआ? So yeah, there's a story behind it actually. What happened was that when I was in my 4th year end, so till from 3rd year end to almost 5th year starting, I was completely doing GS. Okay. Because GS is huge, right? And it also carries more marks. तो GS में पढ़ रहा था, and then I was sure कि चलो अब let's talk about optional. Let's see where should I go from here. So I talked to one of my seniors. He has also given many attempts of UPSC. अच्छा. तो he was telling me यार कि देखो तुम lawyer हो, तुम also I didn't have a lot of time, right? In my 5th year I had to do other things also, right? In college का भी, और साथ में मेरे को GS और better करना था, सारे GS करने थे, Right. essay पे भी काम करना था, everything. तो I was like सर ऐसा कोई optional बताओ कि जो थोड़ा छोटा हो ये वो. तो he was like छोटा तो नहीं वो है law, definitely it's the vast, it's very vast, but you will have an understanding of law if you really, क्योंकि at the end of the day क्या होता है ना, तुम्हारे जो नोट्स बनते हैं लॉ के वो सारे PYQ बेस्ड बनते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उसकी थीम्स उठाओ, बिकॉज दे आर मोस्टली रिपीटेड काफ़ी बार. 100%. सो यू डू दैट. लेकिन साथ ही साथ लॉ एज अ सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ना, उसमें बहुत सारे लॉज हैं. तो आई थिंक देयर वाज दिस, मेरे को एक लालच दिया था सर ने कहा था कि इफ़ यू स्कोर गुड इन लाइक इफ़ यू गिव लॉ एज एन ऑप्शनल तो तुम्हारे इंटरव्यू में अच्छे स्कोर आते हैं. अच्छा. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स सी, बट ठीक है, इट हैपेंड समहाउ एंड आई थिंक, राइट. बट स्टिल आई वुड से आई कुड हैव डन बेटर इन लॉ में, क्योंकि मेरे लॉ में भी सवाल छूटे थे 2 Okay. 10 मार्कर्स, एंड because of that my score in law optional 2 was very low. It was 105. So I can definitely improve 20-30 marks in paper 2 and 10-11 marks in paper 1. Okay. Even in GS4 I could have improved. So next attempt I will try that. ओके. प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम बचा है. अगर ये पूरी किताब पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा. एनसीईआरटी का रिवीजन कंपेंडियम पढ़ लेता हूँ, शायद टाइम बच जाए. नहीं, अगर यूपीएससी इसके बाहर से सवाल पूछ देगी तो फिर मैं कैसे करूंगा? काश कोई ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जहां पर पिछले 15-20 सालों में यूपीएससी ने जो भी पूछा है ना, उन सब का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाए. लेकिन ये मिलेगा कहां? हाँ जी, डोंट वरी, जो आप ढूंढ रहे हो वो इधर मिलेगा. प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करो, जरूर निकलेगा. ये है वो माइक्रो थीम की समरी बुक जहां पर लास्ट मोमेंट में आप इनको रिवाइज करके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं. ये कोई नॉर्मल स्टडी मटेरियल नहीं है. ये है पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे हैं, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज, उन सब का एक्सप्लेनेशन है. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको क्लिक कीजिएगा. आपको हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाके रिवीजन मॉड्यूल सेलेक्ट करना है. जब पेमेंट के टाइम पे ये कोड यूज कीजिएगा MARG2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. और हमने इसको कॉम्बो के साथ रिलीज किया है. फॉर एग्जांपल आपने इसको परचेज कर लिया, लेकिन आपने PYQ की थीम्स नहीं परचेज किए, मतलब 16 साल के जो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं, उनके आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन ईयर वाइज, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के नहीं ली है, तो फिर हमने कॉम्बो के साथ इसको अटैच किया है. इन दोनों को बाय करने के लिए फिर से आपको हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे PYQ कॉम्बो सर्च करना है, जहां माइक्रो थीम और रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा. आपको ये कोड यूज करना है मार्ग माइक्रो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. टाइम बहुत कम बचा हुआ है. आप जाके हमारे वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से इसको आज ही परचेज कीजिए और अपने प्रीलिम्स की रिवीजन की तैयारी आज शुरू कीजिए. प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच किया? बिकॉज प्रीलिम्स इज द वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ मासेस. नहीं हो पाता किसी का. तो प्रीलिम्स को कैसे फोकस किया? सीसैट था, इतना कम टाइम था,
टाइम मैनेजमेंट, ये एक सवाल। दूसरा कि क्या ये क्लैट में जो कि हमने एक ऑलरेडी माइंडसेट बना रखा था, यू क्रैक Yeah. क्लैट, राइट, एक कॉन्फिडेंस था, Yeah. तो क्या वो यहाँ पर अप्लाई हुआ, रेप्लिकेट हुआ? So, prelims, of course, the way prelims is being asked nowadays by UPSC, it has become very dicey. And of course, it is to be feared because it is the biggest eliminator of this stage, of this Right. paper. 99% लोग वहीं बाहर हो जाते हैं. So, I think कि I know how to crack prelims because I think कि मैंने prelims को इतना analyze किया, इतना practice किया, इतना breakdown किया है कि कैसे होता है exactly paper. तो I have a few things to say. जो GS1 जो GS का पेपर होता है उसमें पहले तो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं 5-6 कोर सब्जेक्ट्स वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका बेस तुम्हारा बना होना चाहिए. सेकेंडली जो तुम्हारे सोर्सेज हैं सबके लिए आइडेंटिफाइड होने चाहिए और बहुत लिमिटेड होने चाहिए. अगर तुम स्पेक्ट्रम पढ़ो तो स्पेक्ट्रम पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना है. स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ो. स्पेक्ट्रम में हाईलाइट कर दिया, ठीक है, हो गया हाईलाइट. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो रीड. हाईलाइट मत करो, एकदम पढ़ते रहो. हाईलाइट वाली चीज़ें बार बार देखते जाओ, राइट. तुम उस किताब को, लाइक आई हैव रेड लक्ष्मीकांत 9-10 टाइम्स, तो मेरे को लक्ष्मीकांत याद है ऑलमोस्ट. सेम गोज फॉर spectrum maybe, right. so there are certain books जो UPSC market में सबको पता है. But see, you don't do things like, you don't do different things but you do things differently. That's how it is. It's very true. क्योंकि at the end मैंने भी वही book source पढ़े हैं. It's not something different. Right. मैं अगर AIR 1 से पूछूंगा तो उन्होंने भी वही sources पढ़े हैं. It's all about कि तुम कैसे apply करते हो. The second thing is कि UPSC पहले तो तुम्हें concise material रखना है GS के लिए. Second thing is उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करते रहना है. कभी इस पोमो में मत रहना कि तुम्हारा एक क्वेश्चन कहीं और से आ गया था, तुम एक और किताब पढ़ने लग पड़े एक क्वेश्चन के पीछे. That you don't do. You stick to main sources. Second thing you need to do is तुम्हारी पूरी preparation of UPSC prelims should be based on PYQs. Why I am saying this is क्योंकि UPSC एक hint छोड़ता है अपने previous question में. If you look at it तो उसको 4 options बनाने हैं, उसमें से 3 गलत हैं. तो जो 3 वो गलत फ्रेम करता है, इट इज़ इन अ पर्टिकुलर वे. आपको उसका हिंट मिल जाएगा कि वो क्या गलत करता है. तो यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सेटर. जो एग्जाम सेट कर रहा है ना, उसकी लैंग्वेज अगर तुम समझ गए कि यूपीएससी ने पिछले साल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था और 3 स्टेटमेंट्स गलत थी, तो देन यू नो द राइट आंसर. ऑल्सो दिस टाइम ऑल्सो देयर वर 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस जिसमें दे गेव एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कि नो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एन ओशन, इस टाइप का. सो ऑल दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, क्योंकि अगर एक भी प्रूव हो गई कि एक भी बैक्टीरिया मिल गया जो सर्वाइव कर गया, तो देयर स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. सम ऑर्गेनिजम्स, सम मशरूम्स, एग्जैक्टली. सो माय आइडिया रिमेन्स ना कि देयर आर सम क्यूज जो यूपीएससी छोड़ता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट एंड अंडरस्टैंड द previous year question की language and its importance. How did you understood the mindset? How have you done the PYQs? Yeah, so I think पहला सबसे बड़ा myth ये है कि लोगों को लगता है PYQs पकड़े और PYQs solve कर दिया और हो गया. But that's not how it is. PYQs तुम समझ लो कि तुम बेशक टेस्ट मत करो, but PYQs actually are something जो UPSC दे चुका है. It is basically the evidence. It is the evidence. It is the reflection in their mind, into their minds, right? तो अगर आप PYQs देखोगे, PYQs मैंने 2013 से लेके 2024 जो मेरा लास्ट वाला था उस तक सारे के सारे PYQs को पढ़ा था, स्टडी किया था. मैं समझता था कि इसका ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो यूपीएससी पर्टिकुलर आंसर चाहता है. पहले तो मैं उसको अलाइन करता था कि उन्होंने उस साल वो क्वेश्चन क्यों पूछा, तो मेरे को पता चलता था कि कभी करंट अफेयर में रहा है ना कुछ है. उसके बाद मैं सोचता था कि यूपीएससी ने बाकी 3 ऑप्शंस जो दिए हैं वो वही क्यों दिए हैं और कोई ऑप्शंस क्यों नहीं दिए हैं. देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि वो जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं जो आंसर नहीं है. फिर मैं उन तीनों को पढ़ता था कि उन तीनों नेक्स्ट और ऐसा होता है बहुत बार. दे रिपीट इट. लाइक आई थिंक एक गैंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर सवाल था, पिछले साल वो आंसर नहीं था और अगले साल वही आंसर था. तो इफ तुम थोड़ा सा भी उसके बारे में पढ़ के जाते हो तो तुम्हारा आंसर हो जाता है. नेशनल एक्वेटिक एनिमल, आई थिंक सो. या नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है, कुछ था क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर. और उनके उस पे था कि क्यों ज़्यादा वो कम हो रही हैं, या रीज़न क्या था. या तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि जीएस प्रीलिम्स निकालने का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि तीन चीज़ें हैं. पहला तो तुम्हें सोर्सेज मतलब बिल्कुल कंसाइज रखने हैं, उनको रिवाइज करते रहना है. दूसरा ये है कि PYQ उसको अंडरस्टैंड करो, उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो उसके बाद. और तीसरा मेरे हिसाब से PYQ जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है वो है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करो. आई थिंक पीपल ऑलवेज हैव दिस मिसकंसेप्शन कि हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ले आएंगे, बट प्रीलिम्स इतना डाइसी होता जा रहा है हर साल. और प्रीलिम्स के कभी कभी ऐसा यू मस्ट हैव सीन देयर आर कभी तो यूपीएससी अपने आंसर की में गलत देता है. हाँ, ऐसा भी हुआ 1-2 बार, कई बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है. तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एक्यूरेसी. अगर तुम्हारा सही भी होगा मे बी वो गलत दे दें, व्हाट विल यू डू देन. तो आई अटेम्प्टेड 91 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, राइट. ठीक है. डिस्पाइट ओनली नोइंग 40 क्वेश्चंस फॉर श्योर. तो 50 सवाल मैंने और करे हैं, बट आई टुक द रिस्क
and I used my peripheral knowledge, I used my analytical and critical reasoning, and then only I could do that. Yeah, So these are the but that was like intellectual, right? Based on knowledge yeah, coming of from. course. ऐसा नहीं कि नहीं, you can't do that. हाँ. तुक्के से तो नहीं होता यूपीएससी कभी. मतलब मैं यही चाहता हूँ कि बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम दी स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर माउथ कि Yeah. आपको इंटेलिजेंट गेस लगाने Yes, लाइक yes, यू हैव yes. अंडरस्टूड, ऐसे नहीं कि यार सबका आंसर डी होता है हम डी लगा नहीं, that is stupidity. Then तो you are not eligible to sit for that exam. Exactly. वो तो क्लियर ही नहीं होगा. हाँ. What I want to say is कि ये एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें 100 सवाल क्यों नहीं आते हैं. तुम्हें ये होना चाहिए कि 45 सवाल तुमसे बनने चाहिए. उसके Right. बाद तुम स्मार्ट गेस लगा के 90 तक अटेम्प्ट कर पाओ. Because I remember I got 97 in GS. And 97 in CSAT. CSAT. ठीक है. Awesome. तो 97 in GS I attempted 91 question and as I remember मेरे 60 या 61 ठीक हुए थे. तो I was in that zone कि चलो अब हो जाएगा because I was expecting 86 as cut off. सब लोग उतना कर रहे थे. 92 इस बार. लास्ट ईयर का था उतना. 92 इस बार पर ठीक है still. तो now coming to CSAT. तो CSAT I got 97 and you need 66.66 I think. तो CSAT में जो as you asked me the question, the second question was कि तुम्हारा CLAT की preparation how it helped you, right? I would say CLAT पहले मैं बहुत बड़ी misconception में था कि मैंने CLAT करा हुआ है तो मेरा CSAT तो हो जाएगा. Very similar to IITians having this misconception कि हम तो gods हैं maths के, हम तो बना लेंगे. But I'll tell you what happens. UPSC का जो CSAT है उसका जो comprehension है it is very different from CLAT का comprehension. UPSC का comprehension is checking your administrative acumen. इशू बेस्ड कभी होता है. And it is checking your mindset. पहले मेरे को लगता था कि कॉम्प्रिहेंशन ही तो है तो क्या हो गया, बट आई अंडरस्टूड कि यूपीएससी को जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ पे इंसान की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट देखता है. और रीजनिंग और मैथ्स में तो इतना है नहीं है ना उनके पास स्कोप, तो उनके पास वहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन में. तो कॉम्प्रिहेंशन को आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक. तो मैंने 2021-22 का एक पेपर उठाया सबसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था CSAT एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैंने तो क्लैट किया हुआ है. मैंने उसमें कॉम्प्रिहेंशन करे, देयर वर 27 क्वेश्चन्स अराउंड. मैंने 27 के 27 कर दिए एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे 24-23 तो ठीक होंगे. मेरे 6 ठीक हुए, 4 से 6 के बीच ठीक हुए. मैं उसले करे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो क्लैट किया हुआ ये वो. तो देन आई अंडरस्टूड. फिर मैंने क्या किया, फिर इट वाज अ शॉक टू मी. फिर मैंने देखा कि क्या है सीन क्या है ये. तो आई चेक द ऑफिशियल आंसर की. फिर मैंने सारे पेपर 2013 से लेके सारे पेपर, सारे CSAT के पेपर देखे, उनको देखा एक बार, उसके साथ मैच किया उनके ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है. फिर मैं सोचता था यूपीएससी ने यही क्यों आंसर दिया और बाकी 3 क्यों नहीं दिए. देन आई गॉट टू नो कि यूपीएससी हैज़ दिस माइंडसेट. एक यूपीएस मैं बेसिकली हमेशा इस चीज़ पे मानता हूँ कि बीट प्री मेंस और इंटरव्यू तुम्हें एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसना है. और इसमें तो मैं घुस चुका था. बाय द एंड आई प्रैक्टिस्ड सो मच कि मेरे को पता था कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है उसका क्या माइंडसेट है कॉम्प्रिहेंशन में, एंड आई ऑलरेडी न्यू द आंसर. तो इन द लास्ट आई थिंक जो अभी 25 में था तो मेरे 28 या 29, 27, 28 आए थे, तो मेरे 26 या 27 ठीक हुए थे. ऑलमोस्ट 900% था मेरा कॉम्प्रिहेंशन. बट ऑफ कोर्स माई मैथ इज़ वेरी वीक, सो मैथ में तो मैं बस वही करके आया था जो ऊपर से बन रहे थे मेरे से. CSAT इज़ अबाउट सेलेक्टिंग द ईजिएस्ट क्वेश्चंस. अगर तुम ईगो पे ले गए कि ये सवाल मेरे से कैसे नहीं हो रहा और तुमने वहाँ पे 10 मिनट उड़ा दिए तो योर CSAT इज डन फॉर. एंड रीजनिंग में ऑफ कोर्स माय क्लैट हेल्प, क्योंकि रीजनिंग इज वेरी सिमिलर. रीजनिंग ऑफ क्लैट एंड रीजनिंग ऑफ यूपीएससी इज वेरी सिमिलर, नॉट दैट डिफिकल्ट. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस. ओके. रिगार्डिंग योर मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि 3 महीने में उसके बाद आपने उसी साल प्री निकाला और 15-20 दिन तो लग जाते हैं रिजल्ट आने में प्री के. तो सो डिड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस या फिर रिजल्ट आने का वेट किया था? सो जब मेरा प्री हुआ था जिस दिन 25 मई को, मैंने रात को कर ली थी आंसर की चेक ना, तो आई न्यू कि हो जाएगा बिकॉज आई वॉज इन दैट आई वॉज गेटिंग 98 से 99 के बीच में. तो मेरे को पता था कि इतनी तो नहीं जाएगी कट ऑफ, है ना, हो जाएगा. CSAT में भी आई वॉज गेटिंग वेरी गुड 80+. उस समय 85+ आ रहे थे, तो एक्चुअल आई गॉट 97. तो हाँ आई वॉज वेरी, क्योंकि 2-3 कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है तो वो तो छोड़ो, उसको मैं नेगेटिव लेके चल रहा था. तो आई न्यू प्री हो रहा है, बट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बिकॉज वंस प्रीलिम्स इज ओवर ना, तो तुम प्रीलिम से पहले वाला जो माहौल होता है 1 महीने का, वो बहुत गर्म रहता है. उसमें यू आर स्पेंडिंग 10-12 आवर्स पढ़ रहे हो दिन में, ना, बिकॉज यू हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स. बट फिर उसके बाद यू गेट अ बिट रिलैक्स्ड कि चलो हो गया, अब देखते हैं, करते हैं कुछ दिनों बाद. फिर आई स्टार्टेड, ऐसा नहीं आई डिड नॉट. मैंने GS4 की आंसर राइटिंग चालू कर दी थी फ्रॉम 1 जून से. 11th को आई थिंक रिजल्ट आया था. 1st से 10th तक मैं कर रहा था, बट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस है ना. आई वॉज इन धर्मशाला ओनली, आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम देयर, घर से ही कर रहा था. बट फिर रिजल्ट आता है, आई न्यू कि होगा नाम, और था लकीली. एंड देन आई वेंट टू चंडीगढ़.
एंड चंडीगढ़ में फिर वहाँ पे मैंने कोचिंग नहीं ली थी, बट मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी विजन आईएएस की, और वहाँ से मैंने टेस्ट लिखे, सेम फॉर ऑप्शनल डी फैक्टो की मैंने ली थी, और मैंने ऑप्शनल लिखा और वो लिखा प्रीलिम्स मेंस का। जीएस के मैंने 12 टेस्ट लिखे, ठीक है, फुल लेंथ। मैंने ऑप्शनल के भी 12 टेस्ट लिखे फुल लेंथ। एस्से मैंने 5 लिखे, मतलब 10 एस्से लिखे टोटल। तो दिस वाज बाय द एंड आई वाज ऑलमोस्ट रेडी कि हाँ चलो अब दे सकते हैं, बट ठीक है, द प्रेशर आई वाज नॉट यूज्ड टू फॉर मेंस, सो मेरे थोड़े क्वेश्चंस छूटे, आई कुड हैव डन बेटर, बट So, what was your approach for the answer writing? Like, ये कॉलेज टाइम से ही था प्रैक्टिस, क्योंकि यूपीएससी आंसर राइटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, अब और वो भी ऑप्शनल की भी अलग होती है, देन आपकी जीएस की भी अलग है, देन एसए की भी अलग है, एथिक्स की भी थोड़ी सी अलग है। सो ये मतलब जो स्ट्रैटिफिकेशंस हैं, लेयर्स हैं, कैसे आपने डिकोड किया? बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल। या सो आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि प्रीलिम्स से पहले मेरा मेंस हो जाना चाहिए। एंड मैंने जून 2024 विच वाज 1 ईयर प्रायर टू माय प्रीलिम्स, दिसंबर तक हो गया। हाँ दिसंबर तक मैंने कवर किया। दिसंबर क्या, मैंने तो जनवरी तक किया था, क्योंकि मेरा कवर नहीं हो रहा था। आई कवर्ड माई GS का सिलेबस, GS4 आई डिड, GS3 आई डिड, GS2 मैंने खुद से किया पूरा, GS1 मैंने किया नहीं था तब तक बिकॉज मैंने उसको प्रीलिम्स के साथ किया। एस्से मैंने एक भी नहीं लिखा था बिफोर द 3 मंथ्स, जो बीच के 3 महीनों से पहले आई डिडंट राइट एनी एस्से। ऑप्शनल किया, उसमें ही कवर है ना, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिड दैट। जो बीच के 3 महीने थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें मैंने ज़्यादा फोकस आंसर राइटिंग में किया। और द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि कैसे आंसर राइटिंग करते थे, आई थिंक आंसर राइटिंग टू गेट मार्क्स इन मेंस देयर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। पहला ये है कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो ठीक होना चाहिए, इट शुड बी गुड, इट शुड बी बेटर देन अदर्स, है ना। एवरेज से ठीक कैसे होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? PYQs लो, थीम्स पकड़ो, थीम्स में बेस्ट डाटा उठाओ, you get data from the government sites, you get from coaching, you can get from a number of sources. लेकिन तुम्हारे जो notes हैं वो बहुत specific होने चाहिए। Like there was a question on left wing extremism this time in GS3 and I had just 2-page notes. सिर्फ 2 पेज में मैंने पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कवर किया था। It had committees, it had data, it had map, it had graphs, it had home ministry का data, it had various schemes of the government. So मैंने concise करके उसको वहाँ डाल दिया था। अब जब वो क्वेश्चन आया तो मेरा जो रैम है वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, मेरे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा था। आई वाज जस्ट लाइक मेरे दिमाग में वो पेज आ गया था एंड आई वाज जस्ट कॉपिंग दैट। तो आई ऑलवेज से दिस कि यू हैव टू, तुम जो मेंस है, मेंस के जीएस बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पहले पढ़ लेते हो, वहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ एग्जीक्यूट करने का ही टाइम है। यू डोंट हैव टाइम टू रीड, थिंक एंड एनालाइज, राइट। वहाँ पे यू आर जस्ट, तो इसीलिए जो तुम्हारे नोट्स हैं दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर आंसर्स एंड इट इज़ ट्रू। मेरे साथ तो यही हुआ है, सबके साथ यही होता है। दैट इज़ वाई योर नोट्स हैव टू बी वेरी 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 कंसाइज। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ही 15-15 पेज के नोट्स पढ़ रहे हैं, दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, राइट। तुम्हें हर एक समय ये सोच के चलना है कि इसमें अगर 15 मार्कर आ गया तो मेरे पास 2 पेज होने चाहिए। दैट शुड बी योर माइंडसेट। सो ये PYQ का कैसे आपने किया था मेंस में? PYQ, see, I used to take a theme. For example, as I said, linkages between extremism and development is one of the topics of GS3. I took that. मैंने सारे PYQs उठाए आज तक जो इस टॉपिक पे पूछे हैं वो रख लिया, उसको अगले 3-4 पेज में समराइज़ किया। एक पेज में सारे PYQs आ गए, फिर एक इंट्रो उठाई जो कॉमन मैं सबके लिए लगा दूंगा। बॉडी में मैंने अलग अलग पार्ट्स बनाए, पहला कि मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट क्या इश्यूज़ हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या इंसर्जेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी अलग है, राइट। इन सब की इंसर्जेंसीज पे अलग अलग करके बनाए। बट आई थिंक 5-6 पेज में मैंने सारा एक्सट्रीमिज्म जितना भी हो सकता था सब कवर किया। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड अनदर टॉपिक। तो आई वाज वेरी श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से, आई विल हैव द सेम इंट्रो, आई विल हैव द सेम कंक्लूजन। आई कोई सी भी डायमेंशन पे पूछ लिया, आई विल हैव सम आंसर, सम थिंग्स विद मी एंड देन आई डिड दैट। Like you create a template, for example, e-governance पे, then globalization, poverty. हाँ, like template नहीं, template ही मतलब सी e-governance है फॉर एग्जांपल, राइट। तो e-governance के 3-4 डायमेंशंस यूपीएससी पूछ चुका है, तो यू कैन थिंक ऑफ 1-2 मोर अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स, बट 3-4 तुमने कर लिए, उसके बाद 2-3 तुम और सोच रहे हो। तो अगर तुम्हें बाई चांस नहीं भी आता, कुछ ऐसा पूछ लिया जो किया ही नहीं है तुमने, स्टिल तुम अब एक नॉर्मल जो तुमने फ्रेमवर्क बनाया था ई-गवर्नेंस के अराउंड, उसकी डेफिनेशन तो लिख ही दोगे, उसका कंक्लूजन तो लिख ही दोगे, उसका थोड़ा बहुत डाटा तो डाल ही दोगे, क्वेश्चन की एड्रेस कर दोगे। अब क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जो पहले नहीं पूछा है, किसी को आइडिया नहीं है, तो सबकी हालत सेम ही होगी, तो तुम बल्कि बेटर करोगे बाकियों से, क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक डेटा तो है। PYQ का रेपिटेशन मेंस में काफ़ी ज़्यादा है, बट but dimensions are different. Dimensions are different.
See, the themes are repeated, but the questions are generally not repeated. Questions are generally not repeated. Yeah. When, for example, Finance Commission है. Yes. तो Finance Commission के ऊपर there have been multiple questions they have asked, but कभी devolution of power पे, कभी उसके ऊपर center state relation पे, federalism पे. So there are These are all the aspects of center-state relations. वो Yeah. कुछ भी पूछ सकते हैं. Fiscal federalism, they can ask about the power structure, they can ask about the legislative powers and stuff. फिजिकल फेडरलिज्म बहुत बहुत न्यूज़ में बहुत रहता है. क्वेश्चन भी पूछते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. सो आई थिंक थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके Yeah. ऊपर नोट्स बेस्ड होने चाहिए. एंड करंट अफेयर को कैसे आपने मैनेज किया? Prelims. प्रीलिम्स मतलब ओवरऑल इज लाइक कि कैसे मैनेज किया था आपने? आई थिंक सर प्रीलिम्स में प्रीलिम्स या सब में सारी स्टेजेस में करंट अफेयर्स का डर इज समथिंग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा रहता है. मेरे को भी था, बिकॉज करंट अफेयर्स हर दिन चेंज होते हैं एंड देन यू हैव टू कीप अ ट्रैक, राइट. पहले मैंने इस अप्रोच में गया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाऊंगा, बट 5वें छठे दिन मेरा हो गया था. मैंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है. तो You did not read newspaper? I read newspaper, but I read newspapers for mostly editorials. अच्छा. To increase my horizons of understanding. Okay. Right? That was, Okay. and also reading editorials, it helps a lot in essays because you 100%. know how to write a particular way. और वैसे भी जनरली ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट यार, मतलब इवन मेंस के लिए बहुत काम आ जाता है. मेंस के लिए डायमेंशंस पता चलते हैं. डायमेंशंस पता चलता है, न्यू ओपिनियंस पता चलता है. तो एनीवे पर लेकिन मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स पर से जो तुम पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए फॉर एग्जांपल, उसके लिए तो मैं डेफिनेटली यू कांट रेफर टू एनी न्यूज़पेपर. रादर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ऐसी वो जो मार्केट में अवेलेबल कोचिंग की वो थी कंपेंडियम्स वगैरह, वो पढ़ी थी मंथली बेसिस पे. एंड आई थिंक उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था, क्योंकि इस बार दे ट्राई टू जस्ट यूपीएससी ट्राई टू नेल एवरीवन डाउन, बिकॉज यूपीएससी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जो जनरली किसी कोचिंग में आपको मिल जाएगा इस साल. सारे उन्होंने दे ट्राई टू एक्ट वेरी एब्सर्डली. यूपीएससी ने बहुत रैंडम गया इस बार. तो करंट अफेयर्स पीपल आर क्लेमिंग कि उनके इतने करंट अफेयर्स आए हैं, बट दैट्स अ डेवल्यूशन, दैट्स नॉट स्ट्रेट वे अवे. डेफिनेटली उससे बाहर नहीं आए, सीधे नहीं आए हैं. तो आई थिंक करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, तुम्हें पढ़ना चाहिए. तुम कोई भी सोर्स ले लो, कोई भी कंपेंडियम ले लो, है ना, जहाँ पे अच्छा मिल जाए ले लो. बट एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी एक्चुअली करंट अफेयर्स मतलब उसको इंटीग्रेट करके पूछता है. तुम्हारी बेस नॉलेज उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन कम टू एन आंसर डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग अबाउट करंट अफेयर्स. सो बेस इज लाइक दिस एंड ओवर दैट योर करंट अफेयर्स आर बिल्ड. यू कांट बी लाइक तुम करंट अफेयर्स का बेस बना रहे हो और तुम ऊपर बेस चढ़ा रहे हो, तो योर बिल्डिंग विल फॉल डाउन. राइट 100%. एंड दिस इज हाउ लाइक मेंस में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही किया था. सो मेंस इज तो मेंस में पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू रिलायंस पे चलता था. कुछ थीम्स जो मेरी बच गई थी, फॉर एग्जांपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज गिविंग माय मेंस, मणिपुर वायलेंस वाज एट इट्स पीक. तो मणिपुर वायलेंस पहले कभी नहीं पूछा है बिकॉज इट वाज नॉट इन न्यूज़. तो मैंने मणिपुर वायलेंस उठाया, बट मैंने उसका सिर्फ एक पेज के नोट्स बनाए कि मणिपुर वायलेंस ये है, इंट्रोडक्शन ये दे दूंगा, बॉडी में कुछ चीज़ें हैं, क्या इशूज़ चल रहे हैं वो दे दूंगा, और कंक्लूजन ये दे दूंगा. तो ऐसे ही करके जितने भी मेजर तो अब तुम रोज़ के करंट अफेयर्स नहीं करते हो, बट जो थीम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कोई नया लॉ आया है या कुछ आया है, तो यू मेक अ 1 पेजर एंड वो तुम्हारे टोटल मिला के 50 के पेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे सारे जीएस में टोटल, है ना. तो तुम्हारी बेस बन गया, ऊपर से करंट अफेयर्स के एक पेजर्स आ गए. ओके. सो ये सब आपको कहाँ से सीखने को मिला? इज लाइक दी बेस्ट प्रैक्टिसेस. So do you think कि ये आपके कुछ best practices थे which helped you to yeah, of course. So how did you come up to these best practices? So I had मेरे को बहुत जगहों से हेल्प मिली है. Some of my friends have helped me to. तो पहले I was also very confused. I used to make notes 100 पेज के एंशिएंट हिस्ट्री के ही नोट्स बना रहा हूँ, है ना, प्रीलिम्स बेसिकली किताब को ही मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ. तो आई न्यू कि दीज आर द काइंड ऑफ मिस्टेक जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स डालते हैं, यूजुअली हमेशा करते हैं. ठीक है. बिकॉज इवेंचुअली दे हैव टू रियलाइज व्हाट आई हैव रियलाइज टू क्लियर इट, राइट. एग्जैक्टली. लेकिन फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि दे डोंट नो हाउ दिस एग्जाम हैज टू बी अप्रोच्ड. बट देयर वर वेरी मेनी एरियाज, लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ सारथी आईएएस, इफ यू नो. सारथी आईएएस के मैं उसमें था, एमएमपी प्लस करके उनका एक प्रोग्राम है, आई वाज इन दैट. उसमें आइडिया मिला. उसके अलावा मेरे कुछ मेंटोर्स थे from like my father's friends, right? Here they are already in IAS, and some youngsters also, like one of our seniors, like he's IAS in Himachal Pradesh. I talked to him also. He also said the same things. So it was a mix of a lot of things. Also my own understanding of things. मैंने खुद भी बहुत analysis करा है. PYQs को तो मैंने चार्ट लिया था. I still know कि कब कौन सा PYQ कब पूछा गया है. तो I think
बहुत जगहों से कंट्रीब्यूशन है, एंड देन यू कम टू at the end you have to decide for yourself. Right. Nobody decides for you. Right. And thus you can take guidance, but you have to implement yourself. Right. So वो because not everybody comes from kind of background which you, I, maybe someone else coming from, Yeah. right? So naturally कभी-कभी ये जो आपने checklist आपने बताई है, जो आप मिस्टेक कर रहे थे, शायद वो एस्पिरेंट्स मिस्टेक इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में कर सकते हैं. Yes. तो I wanted to ask you that if these people are watching you, tell them that what are maybe 3, 4, 5 whatever things you wanted to tell them कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है. I mean ये रेड फ्लैग है. Biggest red flag is कि तुम बहुत ज़्यादा sources के पीछे भाग रहे हो. You have to understand, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है, वो तुम्हारी रैम बोलते हैं जिसको, वो लिमिटेड है. तुम बहुत कुछ अगर बहुत चीज़ों के पीछे भागोगे ना, तो तुम कर ही नहीं पाओगे यार. बिकॉज सी आवर माइंड वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे. अगर आप साइकोलॉजी बिहाइंड इट पे जाते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप कोई मटेरियल है, अगर आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, राइट, तो आपका माइंड रिटेन कर लेता है. लेकिन आप 10 सोर्सेज पढ़ रहे हो, राइट, तो आपका माइंड जब 10वें सोर्स में होगा, वो पहला, दूसरा, तीसरा भूल चुका होगा. एंड बिकॉज यू रेफर टू सो मेनी सोर्सेज, तो हमारे पास रिविजन का टाइम नहीं है. माइंड नीड्स रिविजन टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू इम्प्रिंट इट, राइट. तो अगर आप एक ही सोर्स को पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें पेज तक याद हो जाते हैं, बिकॉज तुमने इतनी बार सेम चीज़ देख ली है तुम्हारे माइंड ने कि इट हैज़ रिवाइज्ड दैट. बिगेस्ट रेड फ्लैग इज कि तुम बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भाग रहे हो. स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज, स्टिक टू गुड सोर्सेज. दैट्स इट. द सेकंड रेड फ्लैग आई थिंक फॉर मेंस, द सेकंड रेड फ्लैग जनरल इज कि पीपल थिंक कि वो प्रीलिम्स पहले निकाल लेंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे. दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिकॉज आई फील कि मेंस की प्रिपरेशन प्री से पहले हो जानी चाहिए, एंड मेंस विल डिसाइड योर फेट. Right. So that's why pre को focus दो, ऐसा नहीं है नहीं दो, लेकिन 3-4 महीने, if you have built a good base in mains ना, I can assure you 3-4 महीने are more than enough for you to do prelims. Right. ठीक है, तो अगर तुमने 5-6-7-8 महीने सिर्फ मेंस पे लगाए हैं, then it's easy for you to do pre, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, बस उनको थोड़ा फैक्चुअली पढ़ना है, राइट. तो द सेकंड रेड फ्लैग इज कि तुम सिर्फ प्री का पढ़ने का सोच रहे हो और तुम मेंस नहीं कर रहे. ठीक है. द थर्ड रेड फ्लैग इज कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कर रहे हो. दैट यू डोंट हैव टू डू. फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग का क्या पॉइंट है अगर तुम्हें आता ही नहीं है. सी एट द एंड आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है. एंड आर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आंसर राइटिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि यू एज अ पर्सन, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम 2-3 वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन से पूरा आंसर बना सको, 2 पेज का या 3 पेज का. दैट्स व्हाट आंसर राइटिंग इज. और वो तुम्हें तब आती है जब तुम्हारी इंटरलिंकेजेस इतने स्ट्रांग हो. अगर जैसे मैंने बहुत 2-3 जगह दे दिया अभी एग्जांपल. GS1 में चंदेलास पे क्वेश्चन था. अब चंदेलास आर समथिंग मेरे को उस समय बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा था. आई हैड 3 minutes लेफ्ट टू राइट दैट 10 मार्कर. आई न्यू आई विल राइट इट, बट मुझे पता ही नहीं था कौन है. बट स्टिल आई यूज्ड ऑल माई आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज, एंड आई अंडरस्टूड कि देखो एट द एंड ऑफ द डे सबका आर्ट एंड कल्चर काफ़ी सिमिलर ही होगा. टाइमलाइन सोचा होगा. हाँ, टाइमलाइन भी नहीं थी याद मेरे को. मेरे को बस स्ट्रक्चर याद था कि देखो ये है म्यूरल पेंटिंग है, ये है स्कल्पचर्स हैं, है ना, ये सब है. ये टेंपल होगा कोई पर्टिकुलर, ऐसा होगा. टेंपल वगैरह थे उनके, खजुराहो टेंपल फॉर एग्जांपल उनका है, बट मेरे को एग्जांपल्स याद नहीं थे. मे बी आई कुड हैव गॉटन मोर मार्क्स हैड आई नोन, बट उसमें भी मेरे को 0 नहीं मिला होगा, एटलीस्ट 3-4 नंबर तो मिले होंगे. सो माई आइडिया इज कि आंसर राइटिंग करो. When you have enough base knowledge, when you can interconnect things, start answer writing, because answer writing is a skill and it comes with time. तो that is also true कि इतना लेट भी नहीं करना है कि पूरा सिलेबस खत्म करूंगा तब करूंगा, पर ऐसा भी नहीं करना भी स्टार्ट ही नहीं किया तो तब करने लग पड़ा. you have to find a balance in it. Right. These are the 3 flags. What was the role of somebody guiding you, maybe your friends, your family, or any other institute, or your parents as well? The role of guidance, कि वो तुमको एकदम तुम्हारे शू में उतर के बता रहे हैं कि यार ये करो. Yes. What was your, I mean, क्या impact आया आपको प्रिपरेशन उससे? See, guidance, अगर तुम्हारी wrong guidance है इस एग्जाम में, तो you are stuck in a cycle. If you don't have good guidance, if you don't have right guidance, तो like at this age you are too naive to understand the complexity of this exam. This exam is choosing the best minds of the country, and the top bureaucrats who would be the top bureaucrats of the nation, right? So they want the best. They don't care about whether you are able to understand what's your age or anything, right? 100%. So that's why, especially if you have to crack it in your first attempt, you should be having the best of the guidance. And अगर तुम्हें कोई guidance नहीं है तो तुम खुद अपने guide होने चाहिए, और इतने अच्छे होने चाहिए कि you should know everything. Like I would say I was lucky enough कि
मेरे अंदर थोड़ा इंस्टिंक्ट था, ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मैं हमेशा जानना चाहता था कि ऐसा भी क्या है, why this exam is so complex, right? Then I धीरे धीरे whatever I told you is something very few people will tell you, because this is something I have myself found out, और इट हैज़ हेल्प मी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, बिकॉज मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता है कि जब तुम इतने ज़्यादा मटेरियल लेके कोई चीज़ पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा माइंड उतना नहीं कर सकता. आई नो कि फॉर अ फैक्ट कि पॉलिटी के लिए देर आर ओनली 2 सोर्सेज दैट आई हैव रेड लक्ष्मीकांत एंड आई हैव रेड बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट्स द ओनली थिंग आई हैव रेड, एंड आई विल नॉट रीड. अगर मेरे को दूसरा अटेम्प्ट भी देना है तो मैं कभी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट बुक, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई तुम्हें अगर फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता रहता है हमेशा, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, बिकॉज देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन. तुम्हें एट द एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू दिस एग्जाम, एनी स्टेज. इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा, बट प्री और मेंस में भी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. तो डेफिनेटली माई पेरेंट्स, माई फादर हैज़ बीन द गाइडिंग लाइट, बट उनके टाइम अलग पेपर होता था, अब बिल्कुल अलग होता है. तो आई कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन वट ही इज सेइंग, बट ऑफकोर्स द ब्रॉडर, इन द ब्रॉडर सेंस ही हैज़ बीन माई कोर सपोर्ट, core pillar of strength, right? Every way, financially, emotionally, every way. But I would say और लोगों का भी contribution है, like that there are some teachers, there are some even my seniors from who have cracked this exam, right? They have also guided me well, and I was able to take that with a pinch of salt, not to take their strategy completely to myself, but of course tailor making it according to me. So that was there. 100%. Similarly, I mean last 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. When it comes to thinking about preparing for UPSC examination, so आपको डर नहीं लगता था फेलियर का? कि मतलब ज़्यादातर तो स्टोरीज फेलियर की हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में, तो लगा नहीं यार फेल हो जाएंगे, फिर पापा को क्या होगा? फिर यार लगता है डेफिनेटली. मतलब अब मैं यहाँ बैठ के आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम मैं बोलूँ कि मेरे को डर नहीं लगता था, इट विल बी एन इनजस्टिस टू माई ओल्ड सेल्फ, राइट? बट लगता है डेफिनेटली. मेरे को तो बहुत लगता था. आई लर्नड अ फ्यू थिंग्स द हार्ड वे. बेसिकली क्या हुआ था कि प्रीलिम्स से पहले मैंने काफ़ी, आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट मेरे फ्रेंड्स वर ऑल्सो गिविंग विद मी, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट? तो दे couldn't clear the prelims sadly, and they will clear this time, but last year they couldn't, and then prelims में we were very confident कि हमारा हो जाएगा, ठीक है, but फिर only I made it through, and then I was all lonely because I went to Chandigarh, there was no one with me. मैंने पूरी लाइफ 3 थर्ड ईयर से लेके 5th ईयर तक अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर किया, तो एंड आई हैड टू डू सो मच इन दोज 3 months मेंस के, राइट? एंड आई वाज अलोन, तो आई हैड दैट लोनलीनेस भी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर से दूर भी था, है ना? कैसे फाइट करते थे इन चीज़ों को? मैंने खुद को बहुत रोबोटिक बना लिया था फॉर सम टाइम. इमोशंस आई वाज लाइक इमोशंस बाद में एड्रेस करते हैं, फर्स्टली लेट्स एड्रेस मेंस, बिकॉज मेंस के बाद एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ था इमोशनल ब्रेकडाउन, क्योंकि मेरा क्वेश्चन छूट गए थे. ये क्लैरिटी कहाँ से आई आदित्य कि इमोशन को हावी नहीं होने देना हमें? मतलब लाइक you went to Chandigarh, you started preparing, you were alone, nobody was there, right? Everybody was on just a phone call away. But तुम फोकस कैसे करते थे? मतलब बिकॉज सर वही है ना कि मुझे ये पता था कि प्रीलिम्स निकलना इज़ अ लॉटरी, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना इज़ अ बिग थिंग. समबडी टोल्ड मी कि देख तू आ चुका है साइकिल में, यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो अब निकल के क्लियर करके निकलियो, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट शॉट दैट यू हैव. एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर. इंटरव्यू तक अगर तू चला गया तो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर. एज इज़ इन योर फेवर, लॉ डिग्री इज़ इन योर फेवर, योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज़ इन योर फेवर, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर. जस्ट मेंस को अच्छे से निकाल लो, राइट? तो आई वॉज हैविंग दिस आइडिया कि, और मेरे को बहुत कुछ कवर करना था, तो माई माइंड नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मेरे को इतना कवर करना था कि भाई आई डोंट हैव टाइम टू ब्रीद, एंड लाइक क्या करूँ मैं, आई डोंट हैव. बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही रोबोटिक हो गया था. आई वॉज स्टडिंग 7, 8, 9, 10 hours, मे बी एट 10, 12 hours ऑल्सो एट टाइम्स, बट आई वॉज ऑल्सो रिलैक्सिंग अ बिट. मैं जाता था एंड आई यूज टू वॉच अ मूवी, और some days आई यूज टू वॉच अ मूवी. माई कज़न मासीज सन, ही लिव्स इन चंडीगढ़, तो कभी उनके घर चले गए, थोड़ा चिल करा. फिर उनका एक छोटा वो है, मतलब मेरा एक छोटा भाई है, वो भी था मेरे साथ. तो आई वुड से ठीक है, यू नीड सम सपोर्ट, ऑफ कोर्स एट द एंड यू नीड सम पीपल विद यू. दे एक्टेड दैट वे, सपोर्ट के वे में, बट पढ़ना तो खुद पड़ता है. और वही है कि फोकस का, आई थिंक देयर इज़ नो शॉर्टकट. हार्ड वर्क तो पुट इन करना ही पड़ता है इस एग्जाम में. इफ़ यू डोंट पुट इन, दैट समबडी एल्स इज, एंड वो ले जाएगा तुम्हारी सीट. इट डजंट. फोकस कैसे करते थे? मतलब तुम्हें टारगेट पता था, या फिर यू वर प्रीटी श्योर कि
मैं कर ले जाऊंगा, क्या व्हाट मेड यू नहीं। फोकस यार? Nobody can be sure of mains, like even prelims. I would say इसकी कोई भी स्टेज को तुम lightly नहीं ले सकते. You are never sure कि तुम्हारा हो रहा है. The other day I talked to one of the rankers, right? तो he was telling me, I asked him कि सर आपको पता था आपकी इतनी रैंक आएगी? They were like भाई मैं ये सोच रहा था लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए, है ना? तो and then they got that rank, good, very good rank, top 100 rank. एंड आई वाज लाइक कि आपको पता होगा ना थोड़ा बहुत. तो कहता है नहीं भाई इस एग्जाम का कुछ नहीं कह सकता. आई गिवन 2 पहले अटेम्प्ट्स एंड मेरे को लग रहा था जब हो जाएगा तब हुआ नहीं मेंस. जब लग रहा था कि नहीं होगा इस साल तो हो गया, है ना? तो दिस एग्जाम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. अ लॉट ऑफ लक, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो गो टुगेदर. यू बिलीव इन लक? I do, because I think there are two things. I believe there's a concentration zone and then there are selected candidates. Concentration zone में सब हैं जितने इंटरव्यू दे रहे हैं, all are concentration zone में. ठीक है. जो अंदर चला गया तो जो अंदर चला गया उसका थोड़ा लक 10% काम आ गया. कॉन्सेंट्रेशन जोन वाले सारे इक्वली गुड हैं, इक्वली केपेबल हैं. दे विल मेक गुड ग्रेट ऑफिसर्स. जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने प्रतिभा सेतु अभी लाए हैं यूपीएससी वाले. A very good initiative because I think कि everybody who gives interview of UPSC CSC is really someone. He has that ability and understanding because prelims checks your from MCQ solving, maybe Right. रट्टा बोल सकते हो, but mains में completely analytical. So that's why everybody deserves to have some kind of security in life. जब क्लैट क्लियर किया था, because you cracked 2 competitive examinations, Yeah. right? क्या डिफरेंस था जब क्लैट क्लियर किया और यूपीएससी फाइनल क्लियर किया? यूपीएससी में मेरी पर्सनल मेहनत बहुत ज़्यादा है. क्लैट में मेरे पापा की ज़्यादा मेहनत थी बिकॉज मैं थोड़ा छोटा था एंड आई वॉज नॉट वेरी लाइक आई वॉज सीरियस, बट मैं बहुत बेटर कर सकता था क्लैट में. लाइक आई कुड हैव गॉटन top 100 ranks if I wanted to. मैं NLS भी जा सकता था. Right. Yeah, because I had that potential even back then. My father tried to push me as much as he can, but I was resistant myself. I was like कि ठीक है कर लेंगे, but साथ में 11th 12th में भी मज़े कर रहा हूँ, है ना? तो I think that is there, but UPSC में तो it was completely पापा ने थोड़ा सा push दिया and I was willing to run, right? Because I knew कि this is not the exam which CLAT फिर भी एक बार को तुम थोड़ा मस्ती में कर दोगे, बट यूपीएससी सीएससी इट इज़ ब्रूटल एंड इट इज़ ब्रूटल टू एवरीवन एंड एज इट शुड बी considering the rewards and the award that you get when you clear it, right? You get into the top of bureaucracy at such a young age. There will be people 100%, who will be under me who are of my father's age, Right. working under me, right? 100%. And so UPSC wants to check your intellect, that whether Right. you are capable or not. So yeah. You know कैसी वो फीलिंग आती है, मुझे आदित्य बताइए कि आपके पिताजी ने इस एग्जाम को दिया, 6 बार ही दिया, Yes. अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए. नहीं, he has cleared prelims. मतलब Multiple मेंस के हाँ, बाद mains, स्टेज में yes. नहीं जा पाया, बट हिज सन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक्ड यूपीएससी. Yeah. तो कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि कुछ अपने पास एक पावर है, शक्ति है, See, पिताजी से मिली है क्या? Yeah, fathers are like they always try to keep you grounded. तो मेरा रिजल्ट आया, he was happy and stuff, but I was like पापा ये तो मस्ती हो गई, मज़ा आ जाएगा ये वो. तो लाइक नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है. Give once more, improve your rank, get into administrative service types. तो मैंने कहा अरे यार आप थोड़ा दिन तो चिल करने दो भाई. तो fathers are always like that they try to push you always towards better things, right? And my father was happy. I know he's very happy inside. He's not telling me. Of course, he's telling me certain things, but definitely he's much more happier than he's showing. आदित्य माँ का क्या रोल रहा? Sir, like she is. उन्हीं के कारण है हम यहाँ पे धरती में, and माँ तो माँ ही है. माँ से ऊपर कोई नहीं है. Because the emotional side of you, which is the vulnerable side of you, is showcased to only the mother. चंडीगढ़ जब रहते थे तो कभी मम्मा ने नहीं कहा कि मैं आ जाती हूँ, ये है? कहा ऑफ कोर्स. लाइक जब मैं चंडीगढ़ गया था एंड वहाँ पे मैंने पीजी वगैरह ढूंढ रहा था, तो माय मदर वेंट विद मी. अच्छा. when I went to so my mains was in Delhi. So when I came to Delhi, my mother was there with me for 9 days. She was just getting bored. I was going to give papers and stuff. वो बेचारे बोल रहे थे पूरे टाइम इवन इंटरव्यू में मेरे डैड भी थे. अच्छा. मेरी बहन भी आई थी बीच में. ठीक है. तो we were in Delhi also again. तो throughout I think mothers played a tremendous role and there is no doubt about it. Behind every person's success, like mothers are the one who play the most role, because I remember the emotional side of me which I cannot display maybe to my father is something you can definitely display to your mother.
if you've seen that movie 12th Fail, in that there's this bond which is shown, right, कि वो उनकी लैब में जाके सो जाता है and he cries like anything कि मेरे ऊपर इतना भार है and stuff. So my mother was always like कि ये नहीं हो रहा है तो मत करो ज़बरदस्ती. You just take care of yourself. That's the most important thing. I do not care about anything. Just your जनरली happiness. पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी आपको ये महसूस होता था कि अभी इतनी नन्ही सी जान है, 22-23 साल का हूँ, NLU कर रहा हूँ, निकलने दो थोड़ा सा, देन UPSC का प्रेशर आ गया? नहीं, मेरे को प्रेशर नहीं था. स्टार्टिंग में था प्रेशर नहीं था, पुश था. बट सर आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर. 100% पोटेंशियल की बात है एंड इट्स अबाउट योर आई थिंक सर द अर्लियर यू गेट इनटू द सर्विस द बेटर इट इज़ फॉर यू. मेरे को तो पर्सनली ब्यूरोक्रेसी का ऐसा लगता है कि अगर तुम इस एज में आते हो तो यू विल लीड द कंट्री समहाउ समवेयर डाउन द लाइन, राइट. You will get into good positions and power in any service that you go. Right. So I think you have a lot of years to serve the country, and I think at this age it's not a very, बहुत लोगों ने किया है 22-23 में crack. So Yes, they have done. करते हैं लोग तो वही है, प्रेशर नहीं लेना है बस. मैंने एक टाइम पे प्रेशर लिया था which was after my mains this year. मेरे को लग रहा था कि my existence is gone and stuff, like I was very much overreacting, but I think mains क्योंकि वो रिजल्ट में बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन भी छूटे थे ना. हाँ, तो मेरे माइंड में वो था कि यार मेरे तो क्वेश्चन ही छूट गए, लोग तो पूरा करके आते हैं. बट देन आई डिडंट अंडरस्टैंड कि 1750 नंबर का पेपर है, उसमें 20-30 नंबर छूटना इज नॉट अ बिग डील. तो देन मेंस रिजल्ट केम एंड देन आई वाज ऑल रेडी फॉर द इंटरव्यू. Right. My last question to you would be कि to me, to you, these people are watching and कल को शायद आपके लिए ये लोग आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे. दे विल सी यू कि मुझे इन जैसा भैया जैसा बनना है या फिर आदित्य जैसा बनना है. इन्होंने जो आप बोल रहे हैं शायद वो उसको फॉलो भी कर लेंगे. बिकॉज प्रीलिम्स इज नेक्स्ट डोर, यू हैव 50-60 days लेफ्ट. व्हाट एडवाइस वुड यू वांट टू गिव इफ like last year आप भी इस फेज में थे, यहीं पे थे. What advice would you want to give because lakhs and lakhs of people will attempt this year? Yeah. कोई भी एक दो एडवाइस जो आपको लगता है कि नहीं काम आ सकती है. For prelims I would like to tell you the stage that you are in right now, it's March, right? तो मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई में तुम्हारा पेपर है. जस्ट फोकस ऑन 2 things. अपने जो तुमने सोर्सेज पढ़ लिए हैं उनको बार बार पढ़ो, उनको रिवाइज करते रहो एंड साथ में टेस्ट दो. टेस्ट देने से ये होता है कि यू बेसिकली नो योर टाइमिंग्स. तुम्हें ये चीज़ पता चलती है कि तुम कौन सा क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है. तो एनरोल विद सम ऑफ द कोचिंग्स जो साइमुलेटर्स वगैरह कराती हैं, एनरोल विद देम, गिव द टेस्ट, उनसे फीडबैक लो. जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो दोबारा से. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि PYQs पढ़ो. PYQs से अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आई कैन एश्योर यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग अभी 2026 का पेपर विल बी मोर लेंदी, इट विल बी मोर टफ. एंड thirdly it will have more such questions जो तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग से करने पड़ेंगे. दैट इज़ वाई UPSC की 2025, 24, 23, 22 के सारी लैंग्वेजेस, मतलब द वे दे हैव फ्रेम्ड क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड करके रीड करो, उसको स्टडी करो. ओनली देन यू विल बी एंड अटेम्प्ट हाई. लाइक आई वुड से 85 फॉर अ वेरी टफ पेपर and 90 to 95 for medium paper. Exactly. है ना. तो do that is important and do not take CSAT for lightly. CSAT को रोज प्रैक्टिस करो. the thing I told कि there's a particular mindset, उसको एक बार अप्लाई करके देखो. you have some time, you have time with you, you can do that as well. Exactly. Even if Aditya जो आपने बताया, so not a lot of students they get time और maybe उनको पता नहीं होता है कि यार ये करना है ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो शायद अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. मैंने इन लोगों के लिए भी, जैसे आपने PYQs बोले, PYQs आर दी होली ग्रेल. इट्स लाइक दे आर दी एविडेंस, बट इट्स दी लाइक आपको यूज करना आना चाहिए उनको. राइट. आपके पास वो त्रिशूल है, आपको यूज ही नहीं करने आना चाहिए. आप उसको बस कहीं पे चाकू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. उस त्रिशूल को बस मारने के लिए यूज नहीं करना है. पहले उस त्रिशूल की पावर्स को पता होना चाहिए कि वो कितना पावरफुल है. बिकॉज व्हेन यू तुम PYQs सिर्फ पढ़ते नहीं हो, उनके आंसर्स नहीं देखते हो, यू स्टडी देम, यू रिसर्च ऑन देम, यू बेसिकली dissect them. Exactly. Yeah. And I have also, I mean, we have done it. मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तो इतना मतलब बहुत सारे भ्रांतियाँ थी, नहीं हो पाया था. लेकिन जब हम पढ़ाने के मोड में हम जब गए, उसके बाद आई हैव डन, मैंने PYQ को डाइसेक्ट किया हुआ है. 2010 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, वो ट्रेंड की लिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है. एंड स्टूडेंट्स दे आर लाइकिंग इट. yesterday, day before yesterday, the ranker came, अभिजीत. उन्होंने कहा कि मेरे को कहीं से तो एक PYQ का माइक्रो थीम मिला था
मैं कहा बता, तो उसने बताया एंड दैट वाज आवर्स. ओके. ओके. एंड आज की डेट में ये PYQs जो हैं वो लाइक स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, मतलब वो जा रहे हैं. और ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको आदित्य, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग. पहले नहीं पता था या लोग, और मुझे तो ये भी हैरानी होती, देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं करवा पाते हैं PYQ बेसिस पे. it वो is चल weird. रही है, बस ऐसी चल रही है. या So glad that I have got you and that you have shared very very important thing यार, कि targeted preparation करो, limited sources रखो and then just crack it, या right? Yes. Anything else would you like to tell them? I would like to tell कि don't waste your time. This is the best. These are the most productive years of your life. अभी distract होने का time नहीं है. You will get a number of opportunities to do things which you are doing right now, which are not needed for this exam, right? Later in your life, but just settle for now. And कभी भी एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लो. Focus on your mental health also, but also try to understand it. This exam is really really competitive. तो उसको हमेशा एक एग्ज़ाम के लेंस से पढ़ो. जो चीज़ बहुत रेलिवेंट नहीं है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पढ़ने का मन है, उसको तुम बाद में पढ़ते रहना. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. अभी तुम वो चीज़ पढ़ो जो यूपीएससी इंटरेस्टेड है जिसमें, एंड यूपीएससी Right. जिससे क्वेश्चंस पूछेगा. तो बी टारगेटेड इन योर प्रिपरेशन. डू इट एज सून एज यू कैन, एज लाइक जितना जल्दी हो सके उतना बेटर. एंड ऑल्सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड अभी. Awesome, great. Well, thank you so much for your time. Yeah, thank एक बार you मैं so फिर से कह रहा हूँ कि आपने जस्ट एक कॉल मैंने किया और आप यहाँ पे आ गए, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. Thank you so much for that, Aditya. Welcome, And sir. this was Aditya. I am Siddharth. Thank you so much. आप लोगों ने अपना वक्त दिया. Signing off. जय हिंद. Thank you.